जिंदगी में कई बार ऐसी चुनौतियां आती हैं कि जब हम अपनी समस्याओं को अपने से बड़ा मानने लगते हैं, और उस समय बहुत सारे गलत ख्याल भी हमारे मन में आते हैं, और इतना स्ट्रेस ले लेते हैं हम, चाहे स्कूल का हो, चाहे घर का हो, चाहे समाज का हो, चाहे परिवार का हो, इतना अधिक स्ट्रेस ले लेते हैं कि वह स्ट्रेस हम पर हावी हो जाता है और हमें शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पीड़ा पहुंचाता है। इसी स्ट्रेस को हम किस तरीके से मैनेज करेंगे, हाउ टू मैनेज अवर स्ट्रेस, ये सभी चीजें बताने के लिए हमारे पास आज एक इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बीच में है, मिस्टर विनोद तिवारी जी। सर, प्लीज कैमरे पे आइए, हम सभी आपसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक हैं। Yes. Hello and good morning, everyone. Namaste. गुड मॉर्निंग सर। बहुत Good morning, sir. वेलकम सर। Good morning, sir. Good morning. Thank you. Thank you. थोड़ा सा मैं इंट्रो आप सबको देना चाहूंगी। मिस्टर विनोद तिवारी इज पॉपुलरली नोन एज म्यूजिशियन ऑफ वर्ड्स इन बोथ वर्ल्ड। He is UAE's leading entrepreneurship consultant and engineering director, innovative solar energy expert awardee, best-selling author, international speaker, global podcaster, nominee PBS Award 2020, and vision mentor Niti Ayub, having a multi-based interest. Mr. Vinod is a third speaker and conducted more than 180 seminars, workshops in India as well as US, in various industries, forums and conventions. He is deeply engaged with senior leadership and UAE for philanthropic activities, promotion of education and yoga. A true veteran technocrat with 28 years of rich experience in the engineering industry with chronicle success. He has been leading UAE for last 1 decade as Director Renewable Power Solutions for his exemplary contribution in the field of off-grid solar power system in UAE. Mr. Vinod was awarded as the most innovative solar energy expert of the year during International Business Award 2019 at Atlantis, the Palm Dubai. Mr. Vinod was the only Indian who has been invited consecutively for 3 years to be a speaker at the Solar Talk show during Big 5 solar events at Dubai World Trade Center during 2017 till 2019, and he has been awarded as top speaker with highest participation. Sir, we welcome you and over to you, sir. Thank you very much. Thank you very much, Bharti Madam, for a nice, great introduction. Thank you so much. And I want to really congratulate and wish all of you for having a great session which has been organized by KB Vidyalaya Sangathan. And it is something great efforts, I should say, by Dr. Bharati and Mr. Gaurav. So this is something amazing which is happening for all of you guys. So मुझे जैसा बोला गया है कि I have to make my language not I have to deliver everything not in English, but yes, I have to mix and match. So मैं थोड़ी सी मिलावट करूँगा and I would try that what all message I want to send across, it should reach to you. मेरा पूरा मोटिव रहेगा कि मैं जो अगले 30-40 मिनट बात करने वाला हूँ, मैं हर एक टीचर को पर्सनली कनेक्ट कर पाऊँ और मेरा जो मैसेज है वो मैं दे पाऊँ. So this is something great. It's a big privilege for me to be here at this stage. But let me tell you, I am a product of Kendriya Vidyalaya, and that too I am a product of the Kendriya Vidyalaya number 1 Gwalior. So it's something really great. Today's seminar will not be like a logical delivery, it will be an emotional delivery for me. So I want to bow down my head and I want to say salute and namaste to each of you. Thank you very much. Thank you. Thank you. So I would start by sharing my screen, and here what I would do that so that it will keep me intact.
तो जैसा मैं मैडम ने बताया कि हमारा जो आज का सेमिनार जो हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर में। व्हाट इज स्ट्रेस मैनेजमेंट? तो मैं एक छोटा सा वीडियो प्ले कर रहा हूं, एंड बाय दैट टाइम आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज गेट सेटल डाउन and stretch yourself, because I don't know, you have been doing a webinar for a long time, so get yourself relaxed, and this is going to be very interesting, I can assure you that. And this stress management is basically not a topic, it is a package, and we are going to discuss all those aspects of life which will help you to come out of the stress. Let's watch this video, interesting video. Wonderful, wonderful. So these are few of the good memories which I have captured during my last visit. I think recently in February 2021. So I was really fortunate to visit the KV number 1. So guys, I want to invite all of you by wholeheartedly to have this particular session. And here I can promise you that within next 30-40 minutes you're going to get something different, something special for you. तो हमारा एजेंडा क्या होगा? I'm sorry, मैं दोबारा से इंग्लिश पे आ गया था. हमारा एजेंडा होगा, हम लोग 5 चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. सबसे पहली चीज, टॉपिक नंबर 1, I want to inspire you for having a big, great objective for your life. So that is topic number 1. We'll talk about one objective. Topic number 2, I will help you to create a creativity. I will help you to give you 2 ways, 2 तरीके जिससे आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच सकते हैं, थिंकिंग पैटर्न से बाहर आ सकते हैं. और तीसरा टॉपिक में हम बात करेंगे हाउ यू कैन अपग्रेड योरसेल्फ, हाउ यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, हाउ यू कैन बिकम फ्रॉम आउटडेटेड टू आउटस्टैंडिंग. ओके. एंड टॉपिक 4 में हम बात करेंगे बैलेंस ऑफ लाइफ. You have to have a great balance between work and between life. It should be properly balanced. Everything is balanced, your life is super, because हम लोगों का जन्म जो है सिर्फ कोई पर्टिकुलर काम करने के लिए नहीं हुआ है. हमारा जन्म हुआ है अच्छी जिंदगी जीने के लिए. और 5वां, I would like to have whatever question and answers do you have, so we can address those questions. So these are the 5 agendas. थोड़ा सा मेरा टाइम कम है तो मैं थोड़ा जल्दी चलूंगा. I am sorry, but if anything is missed out, you can always ask me at the last. तो सबसे पहली चीज हम बात करेंगे, डिस्कवर योर PMF. ओके. आई वांट टू टेल यू वन थिंग. देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्चुअली एक टॉपिक नहीं है, एक समस्या नहीं है. दरअसल ये एक पैकेज है, और ये पैकेज के अंदर में सबसे ज्यादा जरूरी है कि जब तक हमें हमारा PMF नहीं पता होता, हम छोटी छोटी चीजों के अंदर में परेशान हो जाते हैं. ओके. PMF का मतलब, शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे व्हाट इज PMF. PMF का मतलब होता है प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर. ओके. कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसा पैशन है, क्या चीज ऐसी है जो आपको मोटिवेट करती है, आपको पैशनेट करती है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर. किसी चीज को खोने का डर या किसी चीज को पाने की इच्छा, लाइक गेन या पेन, ये दोनों चीजों पे डिपेंड करता है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मुझे जो है शायद मेरा प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर पैसा है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पैसा बहुत ज्यादा समय तक बहुत सारे लोगों को मोटिवेट नहीं करता. देयर शुड बी समथिंग डिफरेंट, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग दैट यू शुड फाइंड आउट योर पैशन.
ओके लाइक मैं आपको अपना एग्जांपल भी बीच बीच में देता रहूंगा, शायद आप रिलेट कर पाए। मैं एक बड़ा नॉर्मल सा स्टूडेंट हुआ करता था। आज भी हमारा केवी किड्स का एक ग्रुप है व्हाट्सएप के अंदर में, एंड यू विल वंडर दैट जहां पर जितने अच्छे स्मार्ट और इंटेलिजेंट मेरे फ्रेंड्स थे, वो लोग भी आश्चर्य करते कि विरोध तिवारी तुम कौन हो, कहाँ थे पहले। मैं बड़ा एक एवरेज स्टूडेंट था और मैं मार पीट करके अपने घर वालों के द्वारा इंजीनियर बना दिया गया क्योंकि शायद मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है और कहाँ जाना है। बट फाइनली आई डिस्कवर्ड माई पैशन। माई पैशन वॉज राइटिंग and speaking. So I became a best-selling author and I became a motivational speaker, international speaker, podcaster. So I discovered my passion and I want you to discover your passion. आपके अंदर एक बीज बहुत अच्छी चीज का छुपा हुआ है और वो आपको पता करना है। जैसे लता मंगेशकर को यदि एक बहुत अच्छी नासा इंस्टीट्यूट में जॉब मिल जाती तो वो शायद एक अच्छी साइंटिस्ट नहीं बन पाती। सचिन तेंदुलकर को बहुत अच्छा डॉक्टर बना दिया जाता तो वो शायद नहीं बन पाता। क्योंकि हम जो भी कुछ करते हैं वो हमारे पैशन के थ्रू करते हैं। तो आई वांट यू टू चेक आउट योर पैशन एंड योर मिशन। व्हाट इज योर मिशन? मिशन वो होता है जिसके लिए आप जीते हैं, जिसके लिए आप दिन और रात, रात और दिन जीते हैं। दैट इज कॉल्ड पैशन, मिशन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरा मिशन क्या है। जब से मैंने अपने आप की खोज करी है, खुद को पहचाना है, और ये सब कुछ शायद 4-5 साल में हुआ है। यदि 4-5 साल पहले आप देखोगे तो विनोद तिवारी को कोई नहीं जानता था जी, कोई नहीं जानता था। मैं खुद को नहीं पहचानता था। लेकिन हाँ, मुझे एक गुरु मिले, मेरी भेंट हुई एक मेंटर से, और उन्होंने मेरी पूरी लाइफ बदल दी। So I want to emphasize one more thing, that you all should have one mentor in your life, whomsoever. आपका एक मेंटर होना चाहिए, और वो मेंटर आपको बाहर से देख करके आपको चेंज कर देता है। और आज उसकी वजह से मेरा मिशन है कि आई वांट टू इम्पैक्ट एट लीस्ट 1 million entrepreneurs in my lifetime. Why not? Why not? And for the same reason, I have got connected with Niti Aayog. I'm working as a special task for Gujarat region. And I'm a mentor of change, regional mentor of change with Niti Aayog for the Atal Innovation Mission. I'm telling you that if you have a mission, your values come across. और आपको यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Thank you, thank you. Check it. ज्योति मैडम, एक बात बताएं, आप अभिनय इतना शानदार करती हैं, आप नृत्य भी उत्तम श्रेणी का करती हैं, और हमने तो सुना है आप राज्य स्तर पर बैडमिंटन भी खेला करती थी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एक मिनट चतुर्वेदी जी, आप तो स्टाफ रूम में भी ऐसे बात करते हो जैसे तुलसीदास पढ़ा रहे हो। सीधा सीधा नहीं कह सकते कि ज्योति तुम इतनी टैलेंटेड हो तो कोई बड़ा प्रोफेशन ले लेती। ये कांता बहन में साइंस की एक मामूली सी टीचर बन के रह गई। कम ऑन मंजीत, मामूली टीचर? अरे हमें तो गर्व होना चाहिए कि हम इस नोबल प्रोफेशन में हैं। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस वर्ल्ड वुड हैव बीन विदाउट अ टीचर? हाँ? The fear of algebra is none. When you learn it, it's full of fun. बाय द वे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी मदर भी ऑल द लाइफ टीचिंग प्रोफेशन में ही थी, और उन्होंने पूरी जिंदगी अपने टीचिंग करी, ट्यूशंस भी पढ़ाई, और मुझे भी टीचिंग का बहुत पैशन है। बट लेट्स सी द सेकंड पार्ट ऑफ द मूवी। इंडिया न्यूज पे आज के स्पेशल प्रोग्राम ने इतिहास बना दिया। दो टीचरों ने अपने ज्ञान के बलबूते 5 करोड़ जीता है। ब्रावो, बहुत बढ़िया। हाँ तो विद्या जी, ज्योति जी, आपने इतनी बड़ी रकम जीती है, अब तो आपकी जिंदगी आराम से गुजरेगी। आराम कहाँ, काम तो अब शुरू होना है। वो स्कूल तो भी बनना बाकी है जिसका सपना डॉक्टर राधा कृष्णन देखा करते थे, जहाँ शिक्षा का व्यापार न हो, जहाँ पेरेंट्स पर बच्चों की महंगी फीस का टेंशन न हो, जहाँ कोई नुसरत का इकबाल स्कूल से ना निकाला जाए, जहाँ किसी चतुर्वेदी, मंजीत या पिंटू की आंखें नम ना हो। और अब यह स्कूल बनेगा, इन पैसों से बनेगा। अच्छा, तो ये स्कूल बनाएंगे? हम नहीं, हमारी शास्त्री मैम। शास्त्री मैम? और फिर आप दोनों? वही विद्या और ज्योति तो जीत गए,
लेकिन हमारे देश में अनगिनत ऐसी टीचर्स हैं जिनकी जीत अभी बाकी है। यस, अनगिनत ऐसे टीचर्स हैं जिनकी जीत अभी बाकी है, और वो जो टीचर्स हैं वो हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन के। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम कई बार खुद को उतना नहीं जानते जितना लोग हमें मदद करते हैं पहचानने में। मैं आपको बताना चाहता हूं एक छोटी सी इक्वेशन से कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या होना चाहिए। व्हाट शुड बी द पर्पस ऑफ लाइफ? दैट योर टैलेंट, आपका जो भी टैलेंट है, आप जरूर किसी न किसी चीज में तो महारथी रखते ही हैं। आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके, मे बी अ सब्जेक्ट, मे बी अ आर्ट, मे बी और एनीथिंग। सो वहां पर आप किस तरीके से जनमानस को यानी लोगों की मदद कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग कि आपके स्टूडेंट्स के अलावा बाहर के लोगों को भी आप मदद कर सकते हैं, और वो यदि आप जोड़ देते हैं तो आपकी जिंदगी का पर्पस बन सकता है, आपकी लाइफ का पैशन बन सकता है, मोटिवेशन बन सकता है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा दूसरा वीडियो आपको बताना चाहता हूँ। I just wanted to create a learning environment for every student that could spark their curiosity and make them innovative problem solvers so that they could contribute to the community. Girls' education is more than just getting them in the schools. It's more about feeling safe in the community, in the society. I'm really enjoying my job and being a teacher. Now it's like it's my soul. It's my aim of life. Teachers are actually catalysts that can change the society, that can really make the world a much better place that the students would like to live. आई होप कि आप शायद रंजीत सर को जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। शायद आपको पता होगा। आई होप यू द स्लाइड इज विजिबल, राइट? थैंक यू सो मच। आई होप कि आप रंजीत सर के बारे में जानते होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शिक्षक हैं ये महाराष्ट्र के सोलापुर के गांव को बिलोंग करते हैं, और मैं जिन टीचर्स से आज बात कर रहा हूं वो टीचर्स कम से कम 10 गुना ज्यादा क्षमता रखते हैं रंजीत सर से। मैं उन्हें डी-एडिफाई नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने सिर्फ अपने आप को मार्केट किया, अपने आप को सिर्फ बताया दुनिया को कि मैं क्या कर रहा हूं, और उनको वो जो कर रहे हैं उनको फीलिंग होती है कि आई एम इनटू अ नोबल प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बाय चांस किसी एक बहुत अच्छे प्रोफेशन में हैं, आई वॉन्ट टू टेल यू, बट हम क्या करते हैं, हम उसको रिलेट करते हैं या कंपेयर करते हैं अपनी प्रेजेंट पैकेज, अपनी सैलरी, अपनी रिवार्ड से, अपनी अवार्ड से। नो, आई एम टेलिंग यू, ये जो व्यक्ति हैं जिनके वीडियो आपने देखा अभी जस्ट, वो व्यक्ति को ग्लोबल टीचर अवार्ड मिल चुका है। और लेट मी टेल यू कि जो ग्लोबल टीचर अवार्ड होता है वो कितने का होता है। क्या आप में से कोई व्यक्ति बता सकता है कि उसका अवार्ड का प्राइस जो है वो प्राइस मनी कितने रुपए का होता है? इफ एनीबडी कैन टेल क्विकली। 5 करोड़ 7 करोड़। Wow, you are very correct. It is of $1 million. $1 million, which is approximately 7.5 करोड़ रुपीस। अरे यहाँ पर तो जूही चावला और उन्होंने तो एक मूवी में 5 करोड़ का इनाम जीता था। आप सचमुच में 7 करोड़ का इनाम जीत सकते हैं। और मैं ये बातें ऐसे नहीं बोल रहा कि आप इमीडिएटली कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए 2 साल 3 साल लग सकते हैं। आप अपने आप को सिर्फ 3 साल का टाइम दीजिए, और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप में से भी एक व्यक्ति उसका नॉमिनी बन सकता है। I have complete faith in you and I feel that you can do it. Let me tell you, मैं अपने से भी रिलेट करता जाऊंगा। मैं जब 3 साल पहले जर्नी शुरू करी थी तो मैं कुछ नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया, और पिछले साल मैं भारत का जो सर्वोच्च सम्मान होता है NRI का, जिसको बोलते हैं प्रवासी भारतीय सम्मान अवार्ड, उसके लिए मैं नॉमिनेट हुआ था। तो थिंग्स आर दैट कि हाँ, जो जितनी लिमिटेशंस है वो हमारे अंदर हैं। लिमिटेशंस हम खुद नहीं जानते, हम उससे ज्यादा बहुत बड़ी चीज है। आप खुद नहीं जानते कि आप क्या हैं, आप जो सोचते हैं आप उससे कहीं बहुत ज्यादा हैं। और हम जो बात कर रहे हैं इसके बारे में, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि जब आप एक बड़ी पिक्चर देखते हैं, जब आपका गोल बहुत बड़ा होता है, तो आप छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझते। कहावत है कि बड़े युद्ध को जीतने के लिए छोटी लड़ाइयों को हारना पड़ता है।
So you always overlook that. You ignore those all silly, petty things and you focus on bigger picture. तो यदि आप अपने आप को सोच सकते हैं, अपने आप को ड्रीम ले सकते हैं कि हाँ मैं एटलीस्ट अप्लाई तो कर सकता हूं, एटलीस्ट अप्लाई तो कर सकती हूं अगले 3 साल के अंदर में, एंड आई कैन हेल्प यू इफ एनीबडी इज लुकिंग फॉर एटलीस्ट 3 साल में, तो आपका 3 साल का एक गोल लेकर के चल सकते हैं और उसके बाद में आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो सकती है. So have a bigger picture, have a bigger goal. Now let's go to the next slide. I want to help you 2 ways to have a creativity. But उसके पहले मैं आपको 2 excuse बताना चाहता हूं. यदि आप यूज करते हैं तो आप यूज करना छोड़ दीजिए, और यदि नहीं यूज करते तो अपने लिए तालियां बजाइए. पहला एक्सक्यूज जो जनरली मैं लोगों से सुनता हूं, मुझे बहुत बेकार लगता है, वो कहते हैं कि हम ये काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब लोग ऐसा ही करते हैं. आपने सुना होगा ऐसा, तो ये मत बोलिए. सब लोगों ने ऐसा ऐसा किया है, जरूरी नहीं कि आप भी वैसा वैसा ही करें, कुछ अलग कर सकते हैं. और दूसरा एक्सक्यूज, आज तक किसी ने नहीं ऐसा किया तो मैं कैसे करूं, ये भी जरूरी नहीं है. यदि किसी ने नहीं किया तो आप कर सकते हैं, और सब लोगों ने किया है तो जरूरी नहीं कि आप उसे रिपीट करें. थिंक फ्रॉम योर पर्सपेक्टिव. आप अपने आइडियाज से सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं. आई विल हेल्प यू टू गिव यू 2 थिंग्स. नंबर 1 थिंग इज कॉल्ड माइंडसेट. ओके, दरअसल हम क्या करते हैं, हम बच्चों के लिए, जैसे टीचर्स की बात करें, मतलब आपकी हमारी बात करें, हम करते क्या है कि हम अपने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ एक एनवायरनमेंट देते हैं. बराबर है. बीज तो बच्चे के अंदर होता है, बीज तो सबके अंदर होता है, ठीक है. उस बीज को हम बराबर खाद, बराबर पानी और बराबर हवा दें तो वो बीज जो आम का था, आम का पेड़ बन सकता है. लेकिन वो बीज यदि आम का है और हमने उसको बीज, खाद, पानी, हवा गलत दिया तो वो आम का पेड़ कभी नहीं बन सकता. तो दरअसल वी हैव टू मेक आवर माइंडसेट टू हेल्प द स्टूडेंट्स टू become bigger and bigger. So how we can do that? First of all, we have to change our expectations. Okay, यहां पर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगा. क्या एग्जैक्टली होती है एक्सपेक्टेशन. रमेश सर ने एक नया स्कूल ज्वाइन किया और वहां के प्रिंसिपल ने उन्हें बुला करके बोला कि सर, मैंने बच्चों को 2 डिवीजन में बांट दिया है अकॉर्डिंग टू देयर कैलिबर. बहुत इंटेलिजेंट बच्चे सेक्शन ए में हैं, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट, 80-90% से ऊपर ही आते हैं. और जो डफर बच्चे थे, जो फेल होते थे, जो पास भी होना मुश्किल है, उनको मैंने बी में डाल दिया है. रमेश सर कहते हैं ओके थैंक यू सर, एनीथिंग एल्स? तो उन्होंने कहा नहीं, बस आप जाकर के अकॉर्डिंगली पढ़ाइए. रमेश सर ने पढ़ाया, मेहनत करी, 3 महीने, 6 महीने और 8 महीने और 1 साल. 1 साल के अंदर बच्चों का रिजल्ट आया, और शायद आप जो सोच रहे हो वो सही है. ए क्लास ने टॉप किया 80-90% एंड दे वर द बेस्ट ऑफ द बेस्ट. एंड बी क्लास में क्या हुआ, बी सेक्शन के अंदर में हार्डली कुछ बच्चे पास हो पाए 60-70% पे, लेकिन ज्यादातर बच्चे फेल हो गए. ओके, दोबारा सर को बुलाया, रमेश सर आइए. रमेश सर कहते हैं यस सर, हाउ आर यू. मैं आपको एक चीज बताने के लिए बुलाया. उन्होंने बोला बताइए सर. कहते हैं कि दरअसल ए और बी सेक्शन के अंदर में मैंने बच्चों को डिवाइड कैलिबर के अनुसार नहीं किया था. I just randomly divided those. Only what I changed is your expectations. मैंने आपकी सोच बदल दी थी, आपकी एक्सपेक्टेशन बदल दी थी स्टूडेंट से. तो वो कहते हैं फिर ये इतना डिफरेंस कैसे हुआ. तो प्रिंसिपल सर उन्हें समझाते हैं कि ये मैंने आपकी एक्सपेक्टेशन बदली तो आपको उनसे रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन उतनी होने लगी. फिर उन्होंने उनसे पूछा कि आपने किस तरीके से पढ़ाया. तो वो कहने लगे कि सर जब आपने बताया तो एक क्लास का कोई भी स्टूडेंट कुछ भी क्वेश्चन पूछता था, कुछ भी, मैं उसे बड़े प्यार से लेता था, उसको शाबाशी देता था और उसको ढंग से समझाता था. समझ रहे ना. लेकिन बी क्लास का बच्चा कोई भी क्वेश्चन पूछता था, मैं उसको 2 थप्पड़ मारता था और बोलता था तुझे बेवकूफ इतनी सी भी चीज नहीं आती, व्हाट आर यू आस्किंग, सिली क्वेश्चन. और मैं ज्यादातर तो टाइम देता ही नहीं था बी क्लास में, क्योंकि मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि वो लोग बच्चे पास हो पाएंगे. तो दरअसल मैंने ही कम टाइम दिया वहां पर और मैंने यहाँ पर ज्यादा टाइम दिया. मैंने उनके हर बेवकूफ वाले क्वेश्चनों को भी अच्छे से हैंडल किया और यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को भी मैंने बिल्कुल हैंडल नहीं किया. तो गाइस लेट मी टेल यू कि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है बच्चों से, उससे ज्यादा वो आपको कभी डिलीवर नहीं करेंगे. यदि आप चाहते हो, आप ये मानते हो कि मेरे बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत ब्रिलियंट है, बहुत स्मार्ट है, तो वो आपको रिजल्ट भी ऐसा ही देने वाले हैं. मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल खुद का बताता हूं. हम लोग अभी एक ATL मैराथन कर रहे थे पूरे इंडिया लेवल पर थ्रू द नीति आयोग. और मैं एक मेंटर करता हूं स्कूल को, जो मैंने गोद ले रखा है गुजरात के अंदर में, हीरामनी स्कूल. बड़ा एवरेज स्कूल है और वहां के बच्चों ने कभी कोई
मतलब अच्छी बड़ी एक्टिविटी के अंदर में पार्टिसिपेट नहीं किया, स्पेशली दिस टेक्नोलॉजी लेवल पे। मैंने उन्हें बहुत पंप किया, बहुत हवा भरी और बहुत सारे सेमिनार्स और ये सब कुछ किए। गेस व्हाट, वहां के कुछ बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और पूरे इंडिया लेवल के अंदर में, गुजरात के अंदर में हम लोगों ने टॉप किया और हमारे 3 बच्चे वहां पर टॉप 300 की लिस्ट में पहुंच गए। इट इज अमेजिंग, बिग 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 अचीवमेंट। सो आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपने बच्चों को बोला कि आप ब्रिलियंट हो, आप कर सकते हो, और उन्होंने मुझे ऐसा ही रिजल्ट दिया। तो वी हैव टू इंप्रूव आवर एक्सपेक्टेशंस। सेकेंडली, वी हैव टू गिव देम समथिंग वेयर दे कैन ट्राई, risk and fail. You know the different methodologies, different pedagogies. You know that it's not that कि आप उन्हें डायरेक्टली जाकर के फीड कर दीजिए जो उन्हें चाहिए। आप उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट बनाइए कि जहां पर वो बार बार ट्राई कर सकें और फेल हो सके, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर में फेल होना बहुत बेकार और बहुत गंदी बात मानी जाती है। फेल होना मतलब समथिंग वेरी शेमफुल थिंग, बट अल्टीमेटली लाइफ के अंदर में, जैसे आप लोग जानते ही होंगे, कितनी बार फेल होना पड़ता है। लेकिन इंपॉर्टेंट फेल होना नहीं है, इंपॉर्टेंट है उससे स्ट्रगल करके ऊपर आना और जिंदा रहना। कितने सारे लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि बच्चों को रिस्क और फेलियर, ट्रायल एंड एरर मेथड सिखाना है। सेकेंड चीज, हमको उनके लिए इनोवेशन क्रिएट करके देना है। ठीक है, इनोवेशन कैसे क्रिएट कर सकते हैं? यू हैव टू मेक एन एनवायरनमेंट जहां पर कि आप उन्हें प्रॉब्लम फाइंडिंग स्किल्स के बारे में बता सकें, डिजाइन थिंकिंग के बारे में बता सकें, डिफरेंट मेथोडोलॉजी के बारे में उन्हें टीच कर सकें। अगेन, क्रिएटिविटी, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। डोंट गो विद द सेम पैटर्न व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अक्रॉस द ग्लोब, सेम 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 सेम। नो, कुछ नया करिए। क्यों नहीं? बच्चों को भी पसंद आएगा, आपको भी पसंद आएगा। एंड बिलीव मी, टुडेज किड्स आर वेरी इंटेलिजेंट, वेरी स्मार्ट। आपको पता होगा हमारे टाइम के बच्चे, अपन लोगों ने कैसे पढ़ाई करी, शायद टीवी भी नहीं होता था, कंप्यूटर भी नहीं, और आज के बच्चे जन्म भी लेते हैं आईफोन के साथ। उन्हें सब कुछ पता है, दे नो व्हाट इज अ स्क्रीन। सो कहने का मतलब है कि गिव देम एन अपॉर्चुनिटी सो दैट दे कैन क्रिएट एंड थिंक अबाउट इनोवेशन। एंड सेकेंडली, क्रिएट अ हंगर विद इन देम। Okay, don't try to give them ready-made answers. उसने पूछा ऐसा क्या और हमने उसको आंसर दे दिया। No, ask them something which so that it can create more hunger to them to learn something, to get more into the subject. क्योंकि आज के बच्चों का जो फोकस है वो ये है कि हम पढ़े क्यों, हम सीखें क्यों, हम याद क्यों रखें, क्योंकि सब कुछ तो गूगल में है। Why I should remember table of 19? बट पहले के टाइम में हम लोग सारे टेबल्स याद करते थे। तो बच्चों की ये थिंकिंग है कि वो सारी चीजें याद नहीं रखना चाहते, वो कहते हैं सब कुछ गूगल में है। लेकिन हमें उन्हें कोशिश करना है कि वो डीप सब्जेक्ट में जाए, प्रॉब्लम फाइंडिंग स्किल्स के बारे में पता करें और जाने कि किस तरीके से हम उसका एक सॉल्यूशन दे सकते हैं, किस तरीके से आइडिएट कर सकते हैं, किस तरीके से क्रिएटिविटी करके एक सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकते हैं। सो अल्टीमेटली दिस इज अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डेवलप एन एनवायरमेंट लाइक दैट वेयर वी कैन हेल्प देम to make a innovation kind of a thinking, right? So any questions we will take later on. Now let me go to the third topic which is called upgrade. देखिए जी, मैंने आपको बताया था कि आपको आउटडेटेड से अपडेटेड बनने के लिए आपको अपने आप को रेगुलरली अपडेट करना होगा। और मैं कई प्रोफेशन ऐसे जानता हूं जहां पर लोग स्कूल कॉलेज छोड़ने के बाद भी अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं। जैसे आपने देखा होगा एडवोकेट्स, जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर्स, जैसे आपने देखा होगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, दे ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग न्यू थिंग्स। सो इवन फॉर टीचर्स टुडेज एनवायरनमेंट, यू शुड बी ऑल द टाइम अपडेटेड विद काइंड ऑफ स्किल्स। नाउ मैं आपको बताना चाहता हूँ, हार्ड स्किल्स, कोर स्किल्स आपकी सब्जेक्ट की बहुत बढ़िया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, वट एवर यूर टीचिंग इज अमेजिंग, ग्रेट, गुड, डू इट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, सॉफ्ट स्किल्स और डिजिटल स्किल्स में भी थोड़ी सी नॉलेज होना जरूरी है। और यहां पर मैं बात करने वाला हूं नॉट एग्जैक्टली डिजिटल स्किल्स, बट 3 एसेंशियल स्किल्स जो कि हर टीचर में जरूर होनी चाहिए। पहली है लीडरशिप क्वालिटीज। And even pedagogy says that you have to lead the child. You don't have to understand or you have to educate the child, but you have to lead the child. How you can lead without being a leader? So आपको पहले खुद को लीडर बनाना है। अब देखिए, लीडर और टीचर में बहुत फर्क होता है। एक टीचर लीडर हो सकता है, लेकिन सारे लीडर जरूरी नहीं कि वो टीचर्स हों। लीडर का मतलब वो होता है कि वो चीजों को एक अलग एंगल से देखता है। लीडर का मतलब होता है जो सिर्फ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जॉब तक नहीं रहता, बल्कि वो ये देखता है कि मैं एक्स्ट्रा माइल जाकर के कैसे कंट्रीब्यूट कर सकता हूं लोगों को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर को, कम्युनिटी को, मैनेजमेंट को, एंड ही गो एक्स्ट्रा माइल। दैट इज कॉल्ड लीडरशिप।
As simple as that. So do the things which you have never done to get the results which you have never got. As simple as that. Now, second skill जो मुझे लगता है बहुत जरूरी है, that is called communication skills. Communications between students, between parents, and I know you are doing great job. आपको पूरे टाइम communicate करना होता है, आप बहुत अच्छे से communicate करते हैं, but you have to improve it. Communication is not, I'm talking about the verbal skills, but non-verbal skills, non-verbal language actually. What do you mean non-verbal language? जब आप face to face या email या phone से बात करते हैं, तो आपके एक मैसेज जाता है सामने वाले को, एक्साइटमेंट का, नॉन एक्साइटमेंट का, पैशन का, डेडिकेशन का. So all that message should be communicated properly. So you have to improve it again and again. Keep on learning, keep on upgrading yourself. I'm doing so. I'm all the time learning and taking new kind of courses which is available today free of cost. आज की डेट में वो जमाने गए, आपको नॉलेज भरी पड़ी है गूगल के अंदर में और इंटरनेट के अंदर में. यू कैन जस्ट गूगल एंड यू कैन गेट एनीथिंग व्हाट यू वांट. कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी से हाथ भी मिलाते हैं तो आप उनसे एक तरीके से कम्युनिकेट कर रहे होते हैं और वो मैसेज सामने वाले को चला जाता है. तो यू हैव टू स्टार्ट योर कम्युनिकेशन स्किल्स. नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड टीम वर्क. ओके, टीम वर्क क्या होता है कि जिसके अंदर में हम ग्रुप के साथ काम करते हैं. जैसे अभी मैं देख रहा था कि दूसरे स्कूल के जो प्रोफेसर थे, टीचर थे, वो आकर के यहाँ पर बता रहे थे, शायद भोपाल से थे वो. तो यू कैन गो एंड कोलैबोरेट विद अदर टीचर्स, अदर इंस्टीट्यूट्स, अदर टीचर्स, अदर एंटरप्रेन्योर्स, अदर लीडर्स एंड इनवाइट देम. एंड इंडिविजुअली इज नॉट पॉसिबल. आई नो केंद्रीय विद्यालय वैसे करता रहता है बहुत सारी चीजें, पर कहने का मतलब है कि आपको कोलैबोरेट करके टीम वर्क में काम करके आप किसी भी चीज को जीत सकते हैं. यहाँ पर भी एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, which is very much relevant and very much important. Let's watch this one quickly. Once upon a time, a turtle and a rabbit had an argument about who was faster. They decided to settle the argument with a race. The turtle and the rabbit both agreed on a route and started off the race. The rabbit shot ahead and ran briskly for some time. Then, seeing he was far ahead of the turtle, he thought he'd sit under a tree for some time and relax before continuing the race. He sat under the tree and soon fell asleep. The turtle, plodding on, overtook him and soon finished the race, emerging as the undisputed champ. The rabbit woke up and realized that he'd lost the race. The moral of the story is that slow and steady wins the race. ये हम सब लोग जानते हैं. This is the version of the story that we've all grown up with. But our version of the story continues. The rabbit was disappointed at losing the race, and he did some thinking. He realized that he'd lost the race only because he had been overconfident, careless, and lax. If he had not taken things for granted, there's no way the turtle could have beaten him. So, he challenged the turtle to another race. The turtle agreed. This time, the rabbit went all out and ran without stopping from start to finish. He won by several miles. The moral of the story? Fast and consistent will always beat the slow and steady. It's good to be slow and steady, but it's better to be fast and reliable. But the story doesn't end here. The turtle did some thinking this time and realized that there's no way he can beat the rabbit in a race the way it was currently formatted. He thought for a while and then challenged the rabbit to another race, but on a slightly different route. The rabbit agreed. The turtle and rabbit started off. In keeping with his self-made commitment to be consistently fast, the rabbit took off and ran at top speed until he came to a broad river. The finishing line was a couple of kilometers on the other side of the river. The rabbit sat there, wondering what to do. In the meantime, the turtle trundled along, got into the river, swam to the opposite bank, continued walking, and finished the race. The moral of the story? First, identify your core competency, and then change the playing field to suit your core competency. Yes. The story still hasn't ended.
The turtle and rabbit by this time had become pretty good friends, and they did some thinking together. Both realized that the last race could have been run much better. So, the turtle and rabbit decided to do the last race again, but to run as a team this time. They started off, and this time the rabbit carried the turtle till the riverbank. There, the turtle took over and swam across with the rabbit on his back. On the opposite bank, the rabbit again carried the turtle, and they reached the finishing line together. Both the turtle and rabbit felt a greater sense of satisfaction than they felt earlier. The moral of the story? It's good to be individually brilliant and to have strong core competencies. But unless you're able to work in a team and harness each other's core competencies, you'll always perform below par, because there will always be situations at which you'll do poorly and someone else does well. Teamwork is mainly about situational leadership, letting the person with the relevant core competency for a situation take leadership. So I hope that you got 4 morals from this story, right? First version हम सब लोगों ने देखा था, second, third, fourth version were new. So ultimately, as simple as that, we have to go with teamwork. Next slide, it shows balance. This is the last slide what I want to talk. Guys, let me tell you, हम जो भी कुछ कर रहे हैं, यदि हम बैलेंस होकर के नहीं करेंगे तो हम एक अच्छी प्रोडक्टिविटी, अच्छी एफिशिएंसी के साथ काम नहीं कर पाएंगे. You know, you have to rejuvenate as well. You have to take yourself a nap or rest or everything as well to grow your productivity, to grow your efficiency. और बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लाइफ से मुझे बड़ा मजेदार चीज याद आती है, शायद आपको भी पता होगी कि यूरोपियन कंट्रीज बोलती है कि हमारा ना जो वर्क और लाइफ में बैलेंस है वो बराबर नहीं है. तो उन्होंने पूछा जी क्या करना चाहते हो, पहले 6 days वर्किंग हुआ करता था, आपको पता होगा 6 days से 5 days हो गया, लेकिन कुछ कंट्रीज लाइक स्वीडन वगैरह में 4 days वर्किंग है वहां पर, एंड स्टिल दे आर फाइटिंग. वो बोलते नहीं 4 days वर्किंग इज टू मच, हम यानी 3 दिन हमको मजा नहीं आता लाइफ के अंदर में. दे एंजॉय द लाइफ लाइक एनीथिंग. सो माय मैसेज इज दैट work when you work and enjoy when you enjoy. Life should be something where you should not take something from work. Work का pressure घर पे नहीं और घर का gossiping school में नहीं. Something like it. Now, there are 4 pillars of health. Health means stress. आपको ये सब चीज हटाने के लिए 4 pillars. ये 4 पिलर वर्ल्ड वाइड फेमस हैं और ये 4 पिलर्स पे आप काम करते हैं तो आप डेफिनेटली फिट एंड फाइन रह सकते हैं. कहावत है कि आपकी हेल्थ शुरू होती है आपके किचन से, और एक बहुत अच्छी कहावत हमारे भारत में कही जाती है, जैसा अन्न वैसा मन. यस, यू शुड हैव अ गुड न्यूट्रिशियस फूड, एंड व्हाई नॉट. आप जिस प्रोफेशन में हैं आपको कितना बोलना पड़ता है, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना घर पर काम करना पड़ता है, ये सब कुछ के लिए जरूरी है कि आप एक अच्छे न्यूट्रिशियस फूड की हैबिट डालें. एक कहावत है जो मैं ज्यादातर लोगों को बोलता हूं, मैं ये बोलता हूं कि इफ यू डोंट कंज्यूम योर फूड लाइक अ मेडिसिन टुडे, यू हैव टू कंज्यूम मेडिसिन लाइक अ फूड लेटर. आज आप यदि खाने को दवाई की तरह नहीं खाते हो, खाने को दवाई की तरह खाने का क्या मतलब है, यानी आपको विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स सारे कुछ मिलने चाहिए आपकी खाने की थाली से, और आपका ब्रेकफास्ट किंग की तरह होना चाहिए, बहुत कुछ खाना चाहिए. पानी आपको बराबर पीना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पीना चाहिए टू कीप यू हाइड्रेटेड ऑल द टाइम. आई कैन टेक अ बिग टॉपिक लेसन अबाउट दिस न्यूट्रिशियस, बट माय मैसेज इज दैट you have to make yourself intact. When you would be there, आपकी जो immediate family है वो आपको देख करके सीखेगी कि मेरे पापा मेरे मम्मी इतना बढ़िया से अपने आप को मेंटेन करते हैं फूड से, तो they will also have the good habits. Fast food and all occasionally you can try, but ultimately fruits, nuts, those all things are more important, and ultimately green vegetable. So मुझे ये सब बताने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि आप सब लोग बहुत अच्छा ले रहे हैं, लेकिन you can always improve that. Second very important activity that is called yoga. आज हम लोग पायनियर हैं. आपको पता होगा कि योगा IDY जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाता है, उसके लिए जब हम यहाँ पर दुबई के अंदर में लोगों को देखते हैं तो हमें बड़ा प्राउड फीलिंग होती है. हम उन्हें बताते हैं कि दिस हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम इंडिया. यस, वी आर समथिंग ग्रेट इन द योगास, बट व्हाई डोंट वी डू योगा एवरी सिंगल डे? वी शुड बी डूइंग इट. मैं यहाँ पर योगा की प्रैक्टिस करता हूँ, और बाय द वे इस साल का जो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा का जो थीम सॉन्ग था, उसके अंदर में मोदी जी के द्वारा जो उन्होंने अनाउंस किया था योगा, उसमें भी मेरा फोटोग्राफ है. आई वाज इन अ योगा फोटोशूट एज वेल. कहने का मतलब है थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज प्रतिदिन करें,
थोड़ी सी करिए, 10-15 मिनट, आधा घंटा, 10-15 मिनट, आधा घंटा शाम में, लेकिन जरूर करिए, थोड़ा सा समय जरूर निकालिए। एंड एटलीस्ट यू शुड डू 4 to 5 days इन अ वीक। हमारे इंडिया के अंदर में ये कल्चर बहुत मिसिंग है और इस पर हमें काम करने की बहुत जरूरत है। क्यों जरूरत है? क्योंकि हमें अपने बच्चों को मैसेज देना है और बच्चों को योगा और एक्सरसाइज करा करके उनको ओलंपिक में ले जाना है और वहां पर हमारी पदक तालिकाओं में हमको बहुत ऊपर ग्रो करना है। हम इस पार्ट में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं बहुत सारी कंट्रीज से। तो वी हैव टू मेक हेल्दी कंट्री। मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर हर बिल्डिंग के अंदर में, हर 2-2 कदम के अंदर में बड़े बड़े जिम हैं और लोग बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं जिम में, साइकिलिंग में, एक्सरसाइजिंग में, स्विमिंग में। बट हमको भी थोड़ा सा इंप्रूव करने की जरूरत है, हम इंडियंस को। थर्ड थिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज स्लीप, रेस्ट। You know, you have to give your body adequate rest, adequate time, because unless आप अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट नहीं देंगे तो वो आपको उतना आउटपुट नहीं दे पाएगी। आप 6 से लेकर के 8 घंटा आपको प्रतिदिन अच्छा आराम करना चाहिए, साउंडलेस। आपकी नींद कैसी होनी चाहिए कि जैसे ही आप बिस्तर पर जाते हैं, गिर जाते हैं, तो आपको नींद आ जाती है और जैसे ही आप उठते हैं आप फटाक से उठ जाते हैं, क्योंकि आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे साथ पहले नहीं ऐसा होता था। पहले मैं बिस्तर पे जाता था और मैं सोचता रहता था, मुझे नींद नहीं आती थी। मुझे लगता था शायद मुझे स्लीपिंग पिल्स तो नहीं लेनी पड़ेंगी। लेकिन आज की डेट में मैं अपने आप से इतना हार्ड वर्क लेता हूँ सुबह से शाम तक, क्योंकि दिन भर तो मैं अपने प्रोफेशन के अंदर में बिजी रहता हूँ और जितना अनप्रोडक्टिव टाइम है उसके अंदर में मैं समाज सेवा, लोगों की सेवा, लोगों की हेल्प करता हूँ, तो मैं पूरा कंज्यूम्ड हो जाता हूँ। तो जब मैं बेड पे जाता हूं तो आई एम कंप्लीटली फटीग। एंड एक और चीज आपको बताना चाहता हूं कि लोग दरअसल सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हैं, लेकिन मैं उल्टा करता हूं। मैं सुबह उठना का नहीं बल्कि रात में सोने का अलार्म लगाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद मैं जल्दी सोऊंगा या टाइम पे सोऊंगा तो अपने आप टाइम पे उठ जाऊंगा। और डेफिनेटली सुबह मैं उठता हूं बिल्कुल फ्रेश माइंड के साथ में। तो स्लीप इज लाइक अ मेडिसिन, सो यू शुड गिव योरसेल्फ एडिक्वेट रेस्ट। फोर्थ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इज दैट स्ट्रेस, एंड दैट स्ट्रेस कैन बी डिसॉल्व्ड by the positivity. You know, लाइफ के अंदर में हमारे साथ में क्या होता है, हमारी लाइफ के अंदर में हमने इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी सिचुएशंस हैंडल की होती हैं कि हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड होते हैं। और इस स्ट्रेस को हटाने का जो तरीका है, जो हमारे माइंड के अंदर में जो निगेटिविटी जा चुकी है, जो कि एक तरीके से निकाली नहीं जा सकती, डिलीट नहीं की जा सकती कंप्यूटर की तरह, उसको हम रीप्रोग्रामिंग करके सेल्फ टॉक के थ्रू कर सकते हैं। हालांकि मेरा जो पॉडकास्ट है वो इसी टॉपिक के ऊपर में, सेल्फ टॉक के ऊपर में, पर कहने का मतलब है कि हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी लाएं, हम अच्छा देखने की कोशिश करें, हम अच्छा बोलने की कोशिश करें, हम अच्छा सुनने की कोशिश करें। और ये सब कुछ बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के अंदर में अपनी को धीरे 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 निगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ ले जाए। वंस यू स्टार्ट डूइंग दीज ऑल 4 थिंग्स, आई एम टेलिंग यू, ग्लोबली कहा जाता है कि ये 4 पिलर्स हैं हेल्थ के, एंड नॉट ओनली यू बट एवरीबडी यू अराउंड यू can be benefited for by these 4 pillars. So this is all about the 4 pillars what I want to talk. और लास्ट में आपको बताना चाहता हूँ कि जैसा मैंने कहा था, डू द थिंग्स व्हिच यू हैव नेवर डन। जो आपने आज तक नहीं किया, यदि आप वो करना शुरू कर देंगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेंगे जो आज तक आपको नहीं मिले। एंड टुमारो इज द फर्स्ट डे ऑफ द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। ये मेरा फेवरेट कोटेशन है मेरी बुक का। आने वाला कल आपकी जिंदगी का पहला दिन है, पहला सवेरा होने वाला है। डोंट वरी, जो हो चुका जहां हो चुका कोई फर्क नहीं पड़ता। आज से आप एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। और जस्ट before I request Dr. Bharti to come on the stage and ask question answers if there is any, I want to tell you about my social media handles. I would be really happy to help and support you for any kind of thing. I can lift you. LIFT means LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter and YouTube. तो मैं सभी जगह विद्यमान हूँ। आप कहीं भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होगी आपको हेल्प करने में, सपोर्ट करने में। लास्ट में मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, कृपया करके आप मुझे एक फीडबैक जरूर दें। आज के वेबिनार में, आज के सेमिनार में क्या अच्छा लगा, क्या चीज सीखी, क्या करना चाहते हैं, मुझे जरूर बताएं। और ये आप मुझे बता सकते हैं, गूगल करेंगे #I am विनोद तिवारी, तो आप गूगल माय बिजनेस पे, इस पेज पे पहुंचेंगे और वहां पर आप अपना रिव्यू और एक मैसेज जरूर छोड़ें प्लीज। सो ओवर टू यू डॉक्टर भारती प्लीज। थैंक यू सो मच सर। I stop presenting. Yes. Yes. अब एक मिनट बैठिए, बात आपकी बारी में सुनकर तो यही महसूस हुआ कि हनुमान आपके अंदर छुपे हुए हैं। एक जामवंत की जरूरत है और आज जामवंत बनकर आप आए हैं हमारे पास। तो सभी पार्टिसिपेंट्स की ओर से
मैं आपको बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि जो आपने हम सब में जो हनुमान को जगाया है, उसके लिए वो सबके दिलों में एक सुप्तावस्था में था, सो रहा था, लेकिन एक जामवंत बनकर जो आज आप आए और हम सबको इतने अच्छे तरीके से एक तो आपकी एनर्जी देखकर ही हम लोग बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं अपने आप को सर, क्योंकि हम लोगों का ये जो शेड्यूल है बहुत ही टाइट शेड्यूल है और हमारे पार्टिसिपेंट भी इस बात से शायद एग्री करेंगे कि सर की एनर्जी इतनी जबरदस्त है कि उनकी एनर्जी को देखकर हम लोग भी बहुत अपने आप में एक ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे पोस्ट डायरेक्टर भी कुछ कहना चाहते हैं। ओवर टू यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं बीच में बोलने वाला था, मैं सोचा पहले आप अपनी बात पूरी कर लें। तिवारी जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारी रिक्वेस्ट को स्वीकार किया। मैं पूरा सेशन तो नहीं देख पाया, लेकिन पिछले लगभग 20-25 मिनट से मैं आपको आपके लेसन, आपकी जो सेशन है उसको देख रहा था, क्योंकि इससे पहले मेरी एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, तो आई कुड नॉट ज्वाइन इन दैट सेशन। मैं चाहता था कि पूरा सेशन आपका देख पाऊँ, लेकिन जितना भी मैंने देखा, आई वाज रियली एनग्रॉस्ड विद योर सेशन, है ना, कंप्लीटली फुली एनग्रॉस्ड। और वो इसलिए क्योंकि जो स्लाइड्स आप दिखा रहे थे और जिस तरीके से आप प्रेजेंट कर रहे थे, द एनर्जी विद व्हिच यू वर प्रेजेंटिंग योरसेल्फ, जो स्लाइड में चल रहा था, लेकिन आपके जो जेस्चर्स थे ना साइड में, वो भी मतलब यू वर गोइंग स्लाइड बाय स्लाइड विद योर जेस्चर्स। तो निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं यहाँ पर वो लाभान्वित हुए होंगे और आपके जोश के साथ और जो एनर्जी है उसको देखकर वो अपने आप में भी एक उत्साह का, ऊर्जा का संचार महसूस कर रहे होंगे इससे। और जी, I request to all participants, please open your video so we'll take a snapshot. Wow, good idea. Over to you sir. Over to you sir. जी। तो तिवारी जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया। हालांकि ये विषय ऐसा है कि इसमें और आपका जो ज्ञान है, जो आपका एक्सपर्टाइज है, इसमें तो मतलब हमें लगता है कि हम आपको सुनते ही जाएं और बहुत ज्यादा समय चाहिए इन सारी चीजों को समझने के लिए। लेकिन स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है और कैसे टीम भावना के साथ अपने मिशन को आगे बढ़ाना है, ये आपने बहुत ही कम शब्दों में और आसान शब्दों में और बहुत ही उत्साह के साथ आपने सबको बताया, हमारे साथ शेयर किया। मेरी पूरी टीम की तरफ से, मेरे सभी पार्टिसिपेंट्स की तरफ से, रिसोर्स पर्सन्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। और उम्मीद करेंगे कि भविष्य में भी हम आपके साथ जुड़ पाए। कभी बच्चों के साथ भी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के जो हमारे बच्चे हैं, कभी उनको भी आपके शब्दों से मोटिवेशन प्राप्त हो, तो मैं आशा करूंगा जब भी हम आपसे संपर्क करेंगे तो आप जिस प्रकार से आपने इस बार हमारा निमंत्रण स्वीकार किया है, आप हमारे साथ दोबारा आएंगे। और मैं आपसे एक बार मिल भी चुका हूँ, और जब भी आप यहाँ पर आए इंडिया में तो जरूर कोशिश करें कि हमारे पास आए, हमें अच्छा लगेगा। हमारे एलुमनाइज, शायद ये पता नहीं मैम ने बताया कि नहीं बताया, लेकिन आप जो है ना हमारे केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के भूतपूर्व छात्र भी रह चुके हैं। तो मैं तो करने पर इस बात को नोट किया था, बधाई। हम लोग अपने आप में प्राउड फील करते हैं कि केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 के प्रोडक्ट ऐसे भी हैं। जी। तो उस नाते मेरा अधिकार और भी ज्यादा हो जाता है आपके ऊपर तिवारी जी, कि मैंने अधिकार पूर्वक आपसे आग्रह किया था कि आप हमारे प्रतिभागियों के साथ जुड़े, और क्योंकि आप केंद्रीय विद्यालय के भूतपूर्व छात्र भी हैं, तो उस नाते हमने आपको जोड़ना उचित समझा, और आपने अपने सेशन में उस चीज को सार्थक भी किया। और हम आशा करते हैं भविष्य में आपसे इस प्रकार के ज्ञानवर्धक सेशंस आपके साथ और लेते रहेंगे, और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। जब भी आप आए तो हमसे जरूर मिले, हमें अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Dwivedi ji. It was really pleasure to have really great words from you. और मैं आपको बताना चाहता हूँ सभी शिक्षकगण कि ये जो भी सब कुछ हो रहा है, ये सर की वजह से हो रहा है। सर ने बहुत मेहनत करी थी और उसके वजह से ये सेमिनार हो पा रहा है। Thank you very much for giving me this opportunity, and especially thanks to Dr. Bharti as well. And सबसे ज़्यादा जो तालियां या सबसे ज़्यादा जो मतलब हकदार हैं वाहवाही के, वो हैं टीचर्स, क्योंकि आप लोगों ने इतने ध्यान से सुना, तो आप अपने लिए खुद के लिए एक छोटी सी ताली बजा सकते हैं। वंडरफुल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। मैं चाहती हूँ कि कोई पार्टिसिपेंट भी सर का वोट ऑफ थैंक्स दे। प्लीज मूव फॉरवर्ड। पल्लवी मैम, ओवर। थैंक यू मैम। सर, आपने जितने भी आप जैसे व्यक्तित्व से मिलकर के आज हमें बहुत ही खुशी हुई है। कई बातें ऐसी होती हैं जो हम जानते तो हैं, हमारे मन में भी होता है, बट उसको एक्सप्रेस करने में
आज आपके मोटिवेशनल थॉट से हमें रियली एक एनर्जेटिक ऐसा लग रहा है कि नहीं, बहुत सारी चीजें हमारे मन में आ गई हैं और हम एक एंथुजियाज्म आ गया है कि अभी हमें बच्चों के लिए, हमें अपने आप के लिए भी बहुत कुछ करना है और किस तरह से हम अपने आप को चेंज करें। जैसे आपने वेज बताए थे कि क्रिएट योर माइंडसेट, इम्प्रूव योर एक्सपेक्टेशंस एंड देन शो द ट्रायल एंड एरर मेथड टू द स्टूडेंट्स। ये सारी बातें अभी हमारे मन में एक ऐसा घर कर गई हैं कि डेफिनेटली सर हम आगे इन चीज को अपने टीचिंग प्रोफेशन में, इवन हमारी अपनी लाइफ में भी हम इसको इंकलकेट करेंगे, हम यूज करेंगे फॉर फर्दर डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच पल्लवी मैडम। थैंक यू सो मच सर। हम लोग का सौभाग्य रहा तो हम लोग फिर आपसे भेंट करेंगे सर। इस तरह आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। थैंक यू सो मच सर, आप यहाँ आए और हम लोग के लिए इतनी ऊर्जा का हमने संचार किया। थैंक यू वंस अगेन सर। अहो भाग्य। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू सर।